Hello friends, welcome to Raj Malhotra's IAS. So guys, we are about to start this session and this will be your recorded version. Okay, so here is your first page. So it is in public interest to set up courts to try lawmakers. तो यहाँ पे एक कमेटी थी, उनके कुछ recommendations हैं and ये कुछ judgment है. We will definitely deal with this particular thing in detail. Okay, कि क्या exactly है यहाँ पे. And basically this is good. This is related to your electoral reform. Okay, electoral reform, that topic has been covered, and apart from that, judicial activism, or you can say what judiciary is doing to reform the system. Okay, no doubt this particular thing is not directly related to that, but you have to understand this thing, how judiciary is taking up those matters. Okay, because our legislature and executive, they are not working as per the requirement. Okay, Supreme Court lays down the guidelines for matrimonial cases. So we'll see what exactly is there in it, क्या है इसके अंदर. ठीक है ना. मेंटेनेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं, वो जो है यहाँ पे कुछ बताया गया है. ओके, बायोडिकम्पोजर टेक्निक और सक्सेस क्लेम्स केजरीवाल. सो दिस इज़ रियली गुड. स्टबल बर्निंग, ओके, दिस इज़ एन इशू जो एवरी ईयर जो है ये रीअकर होता है. सो नाउ वी हैव अ टेक्निक ऑफ बायोडिकम्पोजर. सो व्हाट एग्जैक्टली इट विल डू, ये बायोडिकम्पोज कर देगा जो आपका स्टबल होता है, एंड दैट कैन बी यूज एज अ मैन्योर. ओके, खाद की तरह उसे यूज़ किया जाएगा, ऑर्गेनिक मैन्योर. ओके, सो win-win situation for farmers also and for the soil fertility also, and it will not cause any damage to the environment. तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, and you can definitely write this particular thing in your answer. जब भी आप environment से related कुछ भी आंसर लिखेंगे, so you can mention about this thing, biodecomposer thing. Okay, how this is a win-win situation. Then apart from that, there is nothing much on these pages. Okay, so we'll directly move to the editorial section now. So fixing the rules of economy. So we'll take up this thing, and this particular editorial is somewhere related to your public administration optional. Okay, PUBAD optional, and what exactly should be done to increase the productivity of the labor, and how technology is impacting the labor market. Okay, how technology is impacting the labor market of any country, and especially in the developing countries. Okay, so we'll pick up this thing. ठीक है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी अच्छी आती है तो आपकी नौकरियां तो जाती हैं, स्पेशली इन योर सेमी स्किल्ड जॉब्स. ओके, सेमी स्किल्ड जॉब जो है दे आर मेजरली इम्पैक्टेड, ये आपको समझना पड़ेगा. ठीक है ना. सो विल टेक अप दिस एडिटोरियल इन डिटेल. सो फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ स्टेट इज बीइंग वीकन्ड. ओके, फाइनेंशियल कैपेसिटी जो है स्टेट्स की वीक हो रही है. रीजन बीइंग दैट जीएसटी कंपनसेशन के अंदर डिले था. ओके, इकोनॉमी इज ऑलरेडी डाउन, सो ये सारी प्रॉब्लम थी. नाउ देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो. वो क्या है, स्पेस इज ऑल्सो रिड्यूसिंग, स्पेस इज ऑल्सो डिक्रीजिंग. क्यों? सेंटर इज इंक्रीजिंग द एम्फेसिस ऑन सेस कलेक्शन. ये सेस लगता है एंड दिस इज नॉट शेयर्ड. ओके, ये नॉट शेयर्ड है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं किया जाता. दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर डिविजिबल पूल. ओके, डिविजिबल पूल का ये पार्ट नहीं होता. ठीक है ना. तो ये आपको पता होना चाहिए. सेस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करती. ओके, एंड दिस सेस इज ओनली फॉर द स्पेसिफिक पर्पज, किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए ये लगाया जाता है. ओके, और उसी के लिए आप पैसा खर्च कर सकते हो, बट ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ इसको शेयर नहीं कर सकती. दिस इज द थिंग यू हैव टू नो. ओके, एज यू नो जीएसटी इज स्टिल डिक्रीजिंग एंड श्रिंकिंग द डिविजिबल पूल. मीन सेस जो है वो बिल्कुल भी सेंटर शेयर नहीं करती. ओके, एंड स्टेट कैन नॉट इम्पोज द taxes also, state government, because after GST we have one country, one market, one tax system. Okay, so state governments can't impose the taxes also. This you have to know. That's why they are not able to generate the extra revenue. Okay, so ये सारी problems जो है वो face कर रहे हैं. in is linguistic nationalism on the wane. Okay, अब यहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं. मतलब ये जो politicians और जो पॉलिटिकल पार्टीज एक तरीके से मिसयूज करती थी, वो कहानी थोड़ी चेंज हो रही है, बिकॉज फोकस इज ऑन इकोनॉमी नाउ. सो एवरीवन इज बिजी. ओके, सब लोग बिजी हैं. यू हैव टू रिवाइव आवर इकोनॉमी. तो इन मुद्दों के लिए थोड़ा ध्यान अब नहीं जा रहा. Then we'll move to this particular page. Kerala to withdraw the general consent to CBI. Okay, we'll take up this thing in detail. देखते हैं exactly क्या है. So यहाँ पे दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है, अंडर दैट प्रोविजन स्टेट गवर्नमेंट जो है वो परमिशन अपनी विड्रॉ कर सकती है. ओके, एंड केरला हैज़ डन दैट. सीबीआई वहाँ पे अच्छे से अब काम नहीं कर सकेगी, परमिशन की ज़रूरत उनको पड़ेगी. मे बी दे विल टेक द परमिशन ऑन द स्पेसिफिक केसेस बेसिस. ओके, केस के बेसिस पे जो है वो परमिशन लेंगे. एंड चाइना रिमेन्स क्वाइट ऑन द पाक्स गिलगित बल्तिस्तान मूव. पाकिस्तान ने क्या किया है, गिलगित बल्तिस्तान जो रीजन है, लाइक इट दैट हैज़ बीन गिविंग द प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस, provisional provincial status, but we consider it as a part of India. Okay, because
it is directly related to your J&K, means it is part of your Jammu and Kashmir, and this is how, you know, Pakistan's decision is violating the Indian sovereignty. But here Chinese are very silent. Okay, जब इंडिया ने लद्दाख और कश्मीर को एक तरीके से यूटी डिक्लेयर किया था, एट दैट टाइम चाइनीज वर वेरी प्रोएक्टिव, they were very vocal about it, they criticized it, but this time they are, you know, chilling and all, they are not, you know, criticizing it. Okay, so this is how situation is. We know that China and Pakistan, they both have a cordial relation. Okay, and this is a threat for us, because जब तक ये ऐसा रहेगा, you can easily understand that India is facing the threat of two front war. Okay, वो ऐसा रहता ही रहता है. So cabinet committee on economic affairs nod for the hydropower project. Okay, so this you have to know, ये सतलुज रिवर पे जो है एक पावर प्रोजेक्ट लग रहा है. Okay, and the name of the project is Luhri. Okay, so Luhri power project. Okay ना, you have to know this. ठीक है ना. So this should be, you know, part of your prelims notes. Okay, prelims के लिए आपको याद रखना है, and हिमाचल प्रदेश में ये लग रहा है. Government forms panel to review the TRP norms. Okay, so now this is again in news. TRP को लेके बात चल रही है. देखते हैं, गवर्नमेंट ने एक तरीके से पैनल बनाया है, उनके रिकमेंडेशंस आएंगे, फिर चीज़ें थोड़ी क्लियर होंगी. Okay, what exactly they are saying, but you should have an idea if you are addressing any question on like media. Okay, so if you are addressing any question on media reforms, that media is not, you know, doing its task, so in that you can mention about this, that what government is doing. Okay, तो आप उसके अंदर ये mention कर सकते हो कि this is what government is doing, they have formed a panel to review the TRP norm. ठीक है ना, तो ये कहानी जो है बनी है आगे. So US election again in focus, we have to still wait for the result. Okay, so after that there will be multiple editorials, so this thing will be covered there. Okay, बहुत कुछ ऐसा आने वाला है, तो अभी इसको थोड़ा वेट करना पड़ेगा. इंडिया एंजॉयज बायपार्टिसन सपोर्ट, सेज श्रृंगेला. सो वेदर इट विल बी डेमोक्रेट्स गवर्नमेंट और द रिपब्लिकन गवर्नमेंट, बोथ विल, यू नो, अंडर बोथ द गवर्नमेंट्स वी विल बी बेनिफिशरीज. ओके, हमें जो है खास प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं आने वाली है, एंड दिस इज रियली गुड. ऐसा अच्छा होना भी चाहिए. ओके, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए फॉरेन पॉलिसी के अंदर अगर गवर्नमेंट कहाँ चेंज होती है. तो बोथ टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स मीन्स डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स बोथ आर फ्रेंडली विद अस. ओके, ये आपको समझना पड़ेगा. देन पीपल आर स्टिल, यू नो, वेटिंग फॉर द रिजल्ट टू कम आउट. ओके, वो कहानी अभी भी बाकी है. देन विल मूव टू this economy. Okay, page, and GDP will be higher than the forecast. this is the good thing. Okay, अब ऐसा समझ में आ रहा है कि GDP थोड़ा ठीक चलेगी, क्योंकि ग्रोथ अच्छी खासी हो रही है. Okay, multiple countries they have, you know, reformed their system. Even in India we have reformed systems, so India is attracting good number of FDI also. So that's why things are turning up, and again this is good for us. Okay, we definitely need, you know, such kind of environment to flourish. तो ये आपको समझना पड़ेगा. ठीक है ना, इसके अंदर. So let's do the things in detail now. देखते हैं डिटेल के अंदर क्या है यहाँ पे. So as I told you, like this thing is in news. Justice N.V. Ramanna, leading a 3-judge bench of Supreme Court on Wednesday, said the court has only public interest and faith in judiciary in the mind while pushing for the setting of special courts to expeditiously try sitting and former MPs and MLAs accused of various crimes. Okay, so this is an idea कि special court बना दो कि आप specifically MLA और MPs को के crimes को ही वहाँ पे deal कर सको. Okay, now this is in news. Okay, so bench was considering a report filed by committee of Madras High Court which stated that you need a, you know, that raised reservation over the setting of special court. Okay, कि like there is no need to set up special court for the, you know, for the trial of existing legislatures. Okay, so this report is saying that under the present system also that can be done, तो अलग से special court बनाने की ज़रूरत नहीं है. Okay, so committee said that the special court cannot be offender centric. Okay, offender centric नहीं हो सकता. Like we have a provision for, you know, special court under POSCO Act, Narcotics, Drugs, Psychotropic Substance Act. Okay, under these laws we have the provision of, you know, special courts, but you cannot have a special court to target or to, you know, to have a trial of legislators only. Okay, सिर्फ legislators के लिए क्यों? What about others? Others should also get the justice. Okay, legislatures के लिए ही तो क्यों? But ये debate अब चल रही है. Okay, this you have to understand. So we have to see what exactly will be coming out after this. Okay, so more than 4,400 criminal trials are pending against the legislature. Of these, more than 2,500 trials involve sitting legislatures. So this is the number that you should be knowing. So if you are, you know, addressing any question on electoral reforms, then you can mention this particular statistics or criminalization of politics. Okay,
So there also you can mention about this particular statistics. तो वहाँ पे भी आप लिख सकते हो. Supreme Court lays down the guidelines for matrimonial cases. Okay. So Supreme Court on Wednesday held that the deserted wife children are entitled to alimony maintenance from their husband from the day they apply for it. Okay. ऐसा नहीं होगा कि कोर्ट के डिसीजन के बाद जो है एलिमनी स्टार्ट होगी. नो, फ्रॉम द डे ये अप्लाई जो है एलिमनी का अमाउंट वगैरह स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है ना. सो अपार्ट फ्रॉम दैट द कोर्ट सेड दैट वुमेन डिजर्टेड बाय हस्बैंड्स वर लेफ्ट इन dire strait and often reduced to destitution, okay, for lack of means to sustain their life and their children. This is the reality. Women, they lack the means to sustain their life. Okay, so considering those things, this is really good. Court is considering that. ठीक है ना. So primary object of maintenance law is to protect a deserted wife and dependent children from destitution and vagrancy. Okay, तो उनकी ज़्यादा नुकसान ना हो, उनको वो बाकी उनकी हालत ख़राब ना हो, डेस्टिट्यूशन में ना जाएं वो, इसीलिए जो है कोर्ट ने ये किया है. एंड नाउ दे हैव इंक्लूडेड द एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन इंक्लूडिंग एजुकेशन, बेसिक नीड्स एंड अदर वोकेशनल एक्टिविटीज शुड बी फैक्टर्ड इन बाय द कोर्ट वाइल कैलकुलेटिंग द एलिमनी. ओके, सो एलिमनी डिसाइड करते टाइम इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाएगा. ठीक है ना. अदर्स फैक्टर्स सच एज स्पायरलिंग इन्फ्लेशन रेट्स, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग शुड बी कंसिडर्ड. ओके, वो भी कंसिडर किया जाना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक इफ एलिमनी इज डिसाइडेड in 1988 that she will get 3,000 rupees. So presently if she will get 3,000 rupees, उसका कोई मतलब ही नहीं है. इतने साल बाद भी अगर 3,000 रुपये मिल रहे हैं तो it is meaningless. Okay, so ये चीज़ें भी कंसिडर करनी पड़ेंगी. That I told you about the biodecomposer thing. Okay, this is a good technique. So stubble into manure का फंडा आ गया है यहाँ पे, and this is a cheap alternative also and environment friendly also. This is good. So Kerala thing is here. So Delhi Police Special Police Establishment Act, under which which governs the CBI. Okay, so under this particular act the law clearly states that the law and order and crime investigation are state subjects. The CBI could probe local cases or charge sheet suspects only with the permission of the state administration. So now this state administration permission has been withdrawn by the Kerala, and Kerala is not the only state. Other states are also doing it. More or less there is a political angle to it. Political in the sense politics is being played, okay, with these agencies. So this is the main problem here, how your agencies are politicized. Okay, your agencies are politicized. So this is the game. Okay, this is the major problem जो हमारे को समझनी है. ठीक है ना. हमारा नुकसान बड़ा हो जाता है, आपकी जो है इंस्टीट्यूशन जो है वो वीक हो जाते हैं. फिक्सिंग द रूल्स ऑफ इकोनॉमी, द फंडामेंटल गेम हैज़ टू चेंज. ओके, करंटली फेवर वेल्दी इन्वेस्टर्स को फेवर करते हैं, नॉट द वर्कर्स एंड टाइनी एंटरप्राइज. दिस इज द रियलिटी. सो वी हैव टू चेंज द सिस्टम ऑल्सो. ओके, सो दिस इज द सोल्यूशन. फ्री अप द मार्केट्स, improve productivity and apply technology. Okay, this is the three solution that this editorial talks about. Okay, free up the market. Here market we are talking about the labor market. लेबर मार्केट को फ्री करो. फ्री इन द सेंस जो रिस्ट्रिक्शंस हैं लेबर लॉज वगैरह की वो रिमूव करो, स्ट्रीमलाइन करो. ओके, then we have productivity. We have highly low productivity in our labor. We have to work on that. And especially here this editorial is suggesting that your private enterprises, okay, private enterprises who are employing those workers, even they can contribute in increasing the productivity. आप विद इन जो है एजेंसी जो है आप प्रोडक्टिविटी उनकी इंक्रीज कराइए. ओके, देन अप्लाई द टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी जो है थोड़े अच्छे से आपको अप्लाई करनी पड़ेगी. रीजन बिंग दैट आप ऐसी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी मत नहीं लगा सकते विच विल गोइंग टू ईट द जॉब्स. ओके, जो जॉब्स खा जाएं सारी की सारी. सो इसको सोच समझ के हमें करना पड़ेगा. नाउ लेट्स डिस्कस दिस. ओके, सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मार्केट शुड बी फ्रीड अप फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सो दैट द फार्मर्स कैन अर्न हायर इनकम एंड फ्रीड अप फॉर द लेबर्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट. ओके, ये अब करना पड़ेगा. ठीक है ना. सो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए आपको जो है रिस्ट्रिक्शंस वगैरह रिमूव करनी पड़ेंगी. ओके, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक तरीके से अच्छे दाम मिले फार्मर को, उसके लिए भी आपको चीज़ें जो है और फ्री करनी पड़ेंगी. एंड वी हैव कम अप विथ 3 लॉज ऑल्सो. एग्रीकल्चर रिफॉर्म से रिलेटेड गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस 3 लॉज. ओके, तो आपको पता ही होगा ये तो. ठीक है ना. सो इट इज़ inadequate growth of income that has caused the slump in investment. So this is the major problem, how this inadequate growth of income has caused the slump in investment. So this you have to understand. So we don't have the income. Okay, so if we don't have income, आपकी अगर income नहीं होती, what it means that there will not be demand also. Okay, demand will not be there. So if demand is there, not there, so supply will also be not be there. I mean, why do they produce? Okay, अगर प्रोड्यूस नहीं करेंगे दे विल बी रिक्वायरिंग less employment, less labor. Okay, so again unemployment will be increasing. Okay,
सो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना. अनएम्प्लॉयमेंट will further increase. Okay, ये होगा, ठीक है ना. This is the spiral that you have to understand. That's why we need to increase the incomes. Okay, so देखते हैं exactly ये क्या कहते हैं. अच्छा, so good market enables smooth transactions between the buyers and the sellers of the commodity. And again, this is somehow related to the ease of doing business. Okay, so this is requirement. This is the basic requirement. Okay, you need to smoothen the system. जितना भी system है आपको उसको smooth करना पड़ेगा. You have to remove the hurdles also. So other thing is that humans are not commodities. Okay. Like agriculture produce and minerals are, humans must not be put up for sale to the highest bidder. Okay, ऐसा नहीं होना चाहिए. So this you have to understand. Human right activists fought a long hard battle to abolish the abhorrent idea that humans can be considered as commodities. Okay, so here we are talking about labor laws. Labor laws should be there. Okay, but it should be done, means it should be streamlined or rationalized. Okay, ऐसा नहीं होना चाहिए. It should hamper the employment thing or the business environment. Okay, and like there should be balance. Okay, even the labor, they do have rights and that those rights should be protected. तो ये चीज़ का ध्यान रखना जरूरी होगा. Okay, so companies can apply two broad strategies for improving their productivity. Here we are talking about the increasing the productivity of the labor. So this is what it can be done. They may require adding more machines and technology to supplement the capacity of worker to increase total output. Okay, so here we are talking about increasing the capacity of workers to like increasing the capacity to increase the total output. Okay, it means that firm will also be a beneficiary. So if labor is productive, okay, labor is productive, then output will also increase. Okay, if output will increase, then definitely profit margin and profit will also increase. This you have to understand. Okay, so that's why it is very much in interest of our enterprises to invest in their workers. Okay, enterprises should invest in their labor. This we have to understand. ठीक है ना, ऐसे उनको करना पड़ेगा. Employer can enhance their workers skill and create a culture of continuous improvement. Okay, ऐसा होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि once you have entered the service, एक बार आप आ गए एम्प्लॉयमेंट के अंदर, देन यू विल बी प्रोवाइडेड द ट्रेनिंग एंड आफ्टर दैट जो है आपको भूल जाएं. ओके, सारा कुछ जो है आपको भूल जाएं. ऐसा नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी रेगुलर इंप्रूवमेंट. ओके, रेगुलर इंप्रूवमेंट होना चाहिए. देन हेयर इज द स्ट्रेटेजी कॉल्ड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. ओके, तो ये स्ट्रेटेजी है. एंड जापानीज कंपनीज हैड लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स विद देयर वर्कर्स. सो कंटिन्यूसली जो है ऐसा सिस्टम रखते हैं. दे डोंट किक आउट देयर वर्कर्स. ओके, लाइफ टाइम जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है. And companies appreciating assets grew their capabilities as well as contributed to the improvement of total productivity of their enterprises. Okay, उनकी कैपेबिलिटी भी बढ़ती है और उनकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाया जाता है. This is what they are focusing on. Okay, so they are basically investing in their workers. So firms should invest in their workers. Okay, they should invest in their workers. This is an idea. Okay, ये आपको समझना पड़ेगा. देन इन इंडिया ऑल्सो इट हैज़ बीन डन, लाइक पिक अप द IT इंडस्ट्री बिफोर दे आर गिविंग द 5 months और 3 months ट्रेनिंग. ओके, दैट 3 months ट्रेनिंग इज व्हाट वो अपने वर्कर्स में इन्वेस्ट करते हैं. ओके, सो ह्यूमंस आर ओनली अप्रिशिएटिंग एसेट्स एज एंटरप्राइजेज हैज. दे कैन इंप्रूव देयर ओन एबिलिटीज. ओके, वो अपनी एबिलिटीज को खुद ब खुद जो है बढ़ा सकते हैं. द वैल्यूज ऑफ मशीन्स बिल्डिंग डेप्रिशिएट ओवर टाइम एज एनी अकाउंटेंट नोज, whereas human being develop when they are treated with respect. Okay, so human being develop होते हैं कैसे? When they are treated with respect and provided with environment to learn. Okay, so they are provided with environment to learn. Okay, ऐसा किया जाना चाहिए. And governments of the countries cannot apply the hire and fire strategy. Okay, ये जो है ऐसा नहीं कर सकते हम लोग. टू इम्प्रूव द नेशंस प्रोडक्टिविटी ऐसा नहीं होना चाहिए. हायर एंड फायर के अंदर उनको मौका देना चाहिए. देयर शुड बी फैसिलिटेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू लर्न. ओके, ये किया जाना चाहिए और उसके लिए आपको एनवायरनमेंट पूरा जो है ऐसा बनाना पड़ेगा एम्प्लॉय फ्रेंडली. तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना जरूरी है. एंड नाउ थिंग्स आर चेंजिंग. ओके, सो दिस इज अ न्यू आइडिया, स्मॉल इज ब्यूटीफुल. ठीक है ना, स्मॉल इज ब्यूटीफुल का आइडिया है वेयर कैपिटलिज्म पावर्ड विद टेक्नोलॉजी विल बी हेडिंग. ओके, इट मीन्स दैट नाउ फर्म्स will increase their revenue by using the technology. Okay, and they will reduce their workforce. So technology को वो बढ़ाएंगे and they will reduce their workforce को वो कम करेंगे. This is an idea. Okay, ये उनका आइडिया है वर्कफोर्स को डाउन करने का और टेक्नोलॉजी को बढ़ाने का. Okay,
सो देर इज अनदर थिंग, अब हो क्या रहा है कि इन डेवलपिंग कंट्रीज ओके विच आर सपोर्टेड बाय द फॉरेन एड एंड दे आर इन्फिल्ट्रेटिंग द न्यू टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी डाल रहे हैं. व्हाट एग्जैक्टली इट इज डूइंग, इट इज डिस्ट्रॉइंग द ट्रेडिशनल वर्क प्लेस. ओके, ट्रेडिशनल वर्क प्लेस को बहुत ही फास्टर रेट पे जो है वो हटाता जा रहा है. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, नया जो है मॉडर्न वर्क प्लेस जो है वो क्रिएट नहीं हो रहा. ओके, रिमूवल ऑफ द ट्रेडिशनल वर्क प्लेस वो बहुत फास्ट रेट से जा रहा है और नया वर्क प्लेस क्रिएट नहीं हो रहा. एंड दिस इज मेजरली प्रॉब्लमेटिक. वाई सो? क्योंकि ये डुअल इकोनॉमी की सिचुएशन लेके आ रहा है. ओके, दो प्रकार की इकोनॉमी बन रही है. एक जगह मास अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है और दूसरी जगह मास माइग्रेशन हो रही है. ओके, सो नाउ आईटी फर्म सारी की सारी बेंगलुरु, पुणे इस सर बेल्ट में है. ओके, सो मेजरली जो है लोग वहाँ माइग्रेट हो रहे हैं. ठीक है ना. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द कंट्री साइड, जो रूरल एरिया, वहाँ की बात करते हैं, वहाँ पे तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है. ओके, सो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. मशीन के आने से, टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन से ये नुकसान हो रहा है कि चीज़ें बिल्कुल साथ साथ पेस पे चले. ओके, जितनी जल्दी मशीन आ रही है उतनी जल्दी आपका वर्क प्लेस भी अच्छे से मॉडर्नाइज हो. बट दिस इज नॉट द केस. ओके, वो वैसा नहीं हो पा रहा है और ट्रेडिशनल वर्क प्लेस कम हो रहा है जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है. ठीक है ना. नई अपॉर्चुनिटीज़ का पेस जो है वो बहुत स्लो है. ओके, सो दिस इज द मेजर थिंग, ये हमें बचना चाहिए. ओके, हम जो है अपने सिस्टम को वेस्टर्नाइज कर रहे हैं रादर देन टेक्नोलॉजाइजिंग देम. ओके, टेक्नोलॉजाइज करने के बजाय हम वेस्टर्नाइज कर रहे हैं, डायरेक्टली उनका मॉडल यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क. वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ओके, ऐसा हमें सोचना पड़ेगा. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग. ओके, गुड जॉब इंप्लाइज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन वर्कर एंड सोसाइटी. वर्कर प्रोवाइड द इकोनॉमी विद द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इट नीड्स. ओके, सो ये आपको समझना है. इन रिटर्न सोसाइटी एंड इकोनॉमी मस्ट क्रिएट कंडीशंस वेयर वाई वर्कर्स आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड can earn adequate income. Okay, good jobs require good contracts between workers and their employers. Good jobs require good contracts between workers and their employers. Okay, ये सिचुएशन आपको समझनी पड़ेगी. तो वर्कर्स एम्प्लॉयर्स के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको भी एक तरीके से आपको एड्रेस करना पड़ेगा. ओके, द गवर्नमेंट टू डिस्चार्ज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट अ गुड सोसाइटी फॉर ऑल सिटीजन. सो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. दे हैव टू क्रिएट अ गुड सोसाइटी, दे हैव टू फैसिलिटेट थिंग्स. ओके, सो इससे सबका बेनिफिट होने वाला है. ठीक है ना. सोसाइटी बेसिकली दे सोसाइटी प्रोवाइड्स द वर्कर. ओके, सोसाइटी ही एक तरीके से वर्कर आपको प्रोवाइड करती है. ओके, सो योर फर्म्स दे ऑल्सो हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स दैम, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. एंड गवर्नमेंट शुड प्ले इंपॉर्टेंट रोल कि वो सिटीजन को एक तरीके से फैसिलिटेट करे, रिस्पॉन्सिबल बनाए. ओके, सो ये कुछ आइडियाज़ हैं जिनके ऊपर हमें बदलना चाहिए. एंड गवर्नमेंट्स अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकती. ओके, और एक आपको समझना पड़ेगा कि रिफॉर्म लेके आना पड़ेगा. दैट विल इंड्यूस फर्म्स टू एम्प्लॉय मोर नंबर ऑफ लेस स्किल्ड वर्कर्स. ओके, ये जो है एक इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने सजेस्ट किया है दैट लेस स्किल्ड वर्कर्स शुड बी हायर्ड. ओके, सो टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फर्म, too often they subsidize labor replacing capital intensive technology rather than pushing innovation in the socially more beneficial direction. Okay, so this is what they are doing. टेक्नोलॉजी जो है वो ले आते हैं सीधा सीधा और एक तरीके से वो आपको ये कहते हैं कि हम लोग और हायर नहीं करेंगे. ओके, सीधा टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करेंगे. बट दे हैव देयर ओन लिमिटेशंस. दे हैव टू कम्पीट इन इंटरनेशनल मार्केट जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. अदरवाइज दे विल नॉट बी एबल टू जनरेट प्रॉफिट. ओके, सो ये तो प्रॉब्लम है. ठीक है ना. सो दैट्स वाई दे आर डिमांडिंग टू फ्री अप द लेबर मार्केट, ताकि जो चीप लेबर है ओके वो और अच्छे से उनको एम्प्लॉयमेंट दी जा सके. ठीक है ना. जितनी भी रिस्ट्रिक्शन है वो हटे और चीप लेबर को और भी जो है एम्प्लॉयमेंट मिल सके. द पावर टू फिक्स द रूल्स ऑफ द गेम हैज़ बिकम कंसंट्रेटेड विद वेल्दी इन्वेस्टर्स एंड लार्ज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन. दिस इज द रियलिटी. ओके, सो हमारे यहाँ पे ट्रेड यूनियन टाइप जो है वो ख़त्म होती जा रही हैं. ओके, बिकॉज वो ये कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी ले आएंगे, मशीन ले आएंगे एंड वी विल नॉट हायर पीपल, बिकॉज ये ट्रेड यूनियन वगैरह होता है. एंड दिस इज हाउ योर लेबर इज वेरी वल्नरेबल. ओके, सो द रूल्स डू नॉट फेवर द वर्कर्स. दिस इज अ रियलिटी. टाइनी एंटरप्राइजेज, because they have too little power. Okay, like big players are calling the shots. They are really influencing the government policy here, and this is how it is directly or indirectly impacting the small players and the workers. Okay, so large enterprises employ fewer people within their own organization, therefore labor unions have lost the traditional support base. Okay, now few बहुत ही थोड़े लोग जो है हायर किए जाते हैं, तो सिचुएशन ऐसी हो गई है. ठीक है ना. so now things have to be done. कुछ करना पड़ेगा. देखते हैं क्या है. द स्मॉल एंटरप्राइज एंड वर्कर्स मस्ट कंबाइन इनटू लार्जर एसोसिएशन. ओके, ऐसा करना चाहिए इनको
ठीक है ना, इन ए न्यू फॉर्म यूजिंग टेक्नोलॉजी टू टिल्ट टुवर्ड्स देयर नीड्स एंड देयर राइट्स। ओके, ऐसा कुछ करना चाहिए, ठीक है ना, बैलेंस को थोड़ा शिफ्ट कराना पड़ेगा, स्मॉल एंटरप्राइज वर्कर्स को उनको कंबाइन होना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा, अदरवाइज दे विल नॉट बी एबल टू compete with these big powerhouses. Okay, so I hope this session is helpful for you guys. Thank you.